चलो लेट्स स्टार्ट. गिव द हेडिंग लीनियर इनइक्वालिटीज. ये पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है. कुछ भी तुमको बुक में करने का जरूरत नहीं है. इट इज डायरेक्टली यू कैन डू इट ऑन योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. इज दैट क्लियर? लेकिन नोट्स लिख के रखो. अच्छा, ये इसका वेटेज इन फाउंडेशन एग्जाम इज ईदर 1 और 2 मार्क्स. 1 या 2 MCQ आएगा. Yes, but it is very scoring obviously. So we finish it off first and today we'll finish it off also. लिखो important points. हाँ, उसके बिना मेरे को आता ही नहीं है पढ़ाने को. लिखो पॉइंट नंबर 1, important points. लिखो an expression of the form इंडेक्स नंबर का थियरी में खाली 2 पेज छोड़ के रखो बस. अरे वही. हाँ तो फिर प्रॉब्लम नहीं है. लिखवाया नहीं तो फ्रेश में लिख देंगे. ठीक है. लिखो an expression of the form ax plus b less than c, ax plus b greater than c, ax plus b less than equal to c, ax plus b greater than equal to c. Is called linear inequalities in one variable. Is called linear inequalities in one variable. Linear inequalities in one variable. Clear? Fail. An expression of the form ax plus by less than c, ax plus by greater than c, ax plus by less than equal to c, ax plus by greater than or equal to c is called linear inequalities in two variables. The linear inequations in two variables. Linear inequations in two variables. Third, the non-negative constraints. The non-negative constraints are x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, or x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0. सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में it means the shading should be restricted in first quadrant only. Same point next line में. It means shading should be restricted in first quadrant only. It means shading should be restricted in first quadrant only. Shading should be restricted in first quadrant only.
एक मिनट, फ्राइडे होएगा क्योंकि तुम्हारा पहले ओसी है फिर एसपी, और एसपी में तुम बैठेगा नहीं, ऑब्वियस है, क्यों बहस कर रहे हो। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो सेम पॉइंट, फॉर एवरी वर्ड प्रॉब्लम, फॉर एवरी वर्ड प्रॉब्लम, सेम पॉइंट नेक्स्ट लाइन में, फॉर एवरी वर्ड प्रॉब्लम, कमा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट is an implied conditions, is an implied conditions, for every word problem non-negative constraints is an implied condition, मतलब कंपल्सरी होना ही चाहिए, since x and y, हाँ since x and y are products, since x and y are products, वही तो बोल रहा हूँ, आर प्रोडक्ट्स आएगा ना ऑब्वियस है, तो ऐसा एपोस्ट्रोफी करके आर लिख ऊपर, तू प्लीज जरा तू भी मत बाल मत खोल, वो फिल्टर होके सुनती है फिर कुछ समझता नहीं उसको। फोर्थ 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 हो गया बस, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 4, इफ द इनइक्वालिटी साइन, if the inequality sign is, inverted commas में लिखो ऐसा, less than equal to, if the inequality sign is less than equal to, then shade the origin side of the line, then shade the origin side of the line, फिर नेक्स्ट सेम पॉइंट नेक्स्ट लाइन में, इफ द इनइक्वालिटी साइन कंटेन्स या इज, इफ द इनइक्वालिटी साइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देन शेड द नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, then shade the non-origin side of the line, clear। फिर नोट करके लिखो सेम पॉइंट में, नोट करके पॉइंट नंबर 1, the above condition is applicable, the above condition is applicable only when, the above condition is applicable only when lines pass through first quadrant or positive x and y axis, or positive x and y axis, फिर नोट नंबर 2, if the line pass through origin, if the line pass through origin, लाइन्स नहीं बोला है, लाइन बोला है, तो लाइन्स, हाँ तो लाइन्स pass through origin, then it is difficult to obtain,
it is difficult to obtain origin side or non-origin side. It is difficult to obtain origin side or non-origin side of the line according to the inequality sign. According to the inequality sign. Full stop. In such cases, comma, we need to check the shaded region. In such cases, we need to check the shaded region with the help of x and y coordinate. On either side of line. X and y coordinate on either side of line. So point number 5. If the word problem contains the wordings at least, then the inequality sign would be इन्वर्टेड कॉमास में लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर नेक्स्ट if the word problem next line, if the word problem contains the wordings at most or total available, then inequality sign will be less than or equal to. Inequality sign will be less than or equal to. क्लियर? समझ में आया ये? चलो लेट अस स्टार्ट नाउ. ये 5 मेन पॉइंट है. क्लियर? कम टू योर पेज नंबर 37. सब बुक में ही होएगा. यू कैन नीड नॉट राइट इन एनी लॉन्ग बुक. पेज 37 चेक करो. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़. हाँ, टेबल दिया हुआ है. यही हम लोग बनाते थे 12th में. करेक्ट. अच्छा, टेबल के हिसाब से हमको इनइक्वालिटी लिखना है और ऑप्शन में देखो इनइक्वालिटी दिया है. करेक्ट. तो टेबल में आ जाओ. अभी टेबल में देखो प्रोडक्ट ए है, उधर ब्रैकेट में x लिखो या x1 जो भी वो लोग ने दिया है. x1 दिया है तो प्रोडक्ट ए के बाजू में ब्रैकेट में x1 आएगा. प्रोडक्ट बी के बाजू में ब्रैकेट में क्या आएगा? हाँ, अब अवेलेबल टाइम है मतलब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है?
टोटल अवेलेबल है, मतलब इतना अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं है, या तो उतना या तो उससे कम। तो अभी बना दो टेबल में देख के इनइक्वालिटी। क्या बनेगा? पहला इनइक्वालिटी आएगा 3x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 36। शांति रख। 5x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू, फिर 2x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 60। एंड नॉन नेगेटिव कंस्टेंट कंपलसरी हर वर्ड प्रॉब्लम में आना चाहिए। तो अभी चेक करो, ये ऑप्शन है तुम्हारा सी। इज दैट क्लियर? तू जुल्फे बांध के रख, अभी भी बोल रहा हूं मैं। वो तो ठीक है, तूने अच्छा ओके। चल नेक्स्ट। अंडरलाइन करो, वर्ड क्या आ गया? एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। ABCD इज द विटामिन, फूड 1 फूड 2 इज द प्रोडक्ट। तो फूड 1 को ब्रैकेट में लिखेगा X, फूड 2 को ब्रैकेट में लिखेगा Y। अभी हमको हर एक इनइक्वालिटी एटलीस्ट वाला है। हाँ, तो पहले A में देखो क्या है, 2x प्लस y, 1y मतलब y। विटामिन ए का यूनिट्स कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 9, टेबल के ऊपर लिखा है, एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। फिर बी का देखो क्या आएगा, x प्लस वाई, परफेक्ट। फिर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू, लास्ट वाला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चेक करो ये कौन सा ऑप्शन में है। चलो, सूरत में बैन है। मेरी नजर में तो प्रीतेश मेल है जेंडर वाइज। तो अच्छा ऐसा होता है, बरोबर। दोस्त वर्ड तो दारूडिया ही होता है ना, ऐसा। चलो नेक्स्ट, थर्ड। हाँ, अभी ग्राफ दिया है और उसका शेडिंग भी दिया है, तो चेक कैसे करने का? सुनना है, सुनना। सबसे पहले ये लाइन दोनों पॉजिटिव एक्सिस से जा रहा है, आया ना? अच्छा, शेडिंग लाइन का ये साइड पे है, मतलब कैन आई से ओरिजिन साइड पे है, मतलब ये इनइक्वालिटी साइन आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट्स भी दिया हुआ है, क्या पॉइंट्स है? 0,2 एंड 3,0, तो ये भी टैली होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चेक करो कौन सा ऑप्शन में लेस देन इक्वल टू साइन है। ए में है, बाकी किसी में नहीं है। ओके, तो ए वाला ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू क्या है? और हम लोग 12th में ऐसा करते थे कि इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करके पॉइंट्स चेक करते थे, करेक्ट? तो अगर इक्वल टू में कन्वर्ट किया तो ये ऐसा आएगा। अभी पॉइंट कैसे डालते थे? अगर x 0 है तो y होता है 3y 6 is 2, मतलब 0,2, तो ये टैली हुआ। फिर y 0 है तो x is 3, तो 3,0, ये भी टैली हुआ, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो दो चीजें टैली करने का, एक साइन और दूसरा पॉइंट्स। हो गया, दैट्स आंसर। है जो बुक नहीं लाया? समझ में आया?
फिर फोर्थ वन पढ़। हाँ, तो इनइक्वालिटी कौन सा है? लेस देन इक्वल टू है। इनइक्वालिटी साइन देखो, लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू मतलब टूवर्ड्स कौन सा ग्राफ में? ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन शेडिंग है, तो दैट्स योर आंसर ए। हो गया, इज दैट सिंपल। अरे कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपन ने 12th में इतना डिटेलिंग किया है ना, इसलिए ये आता है। हाँ, क्या बोल रही है? लेस देन इक्वल टू मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन इक्वल टू? तू ग्राफ बोल रही है या मीनिंग पूछ रही है? ग्राफ में मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। चलो, क्लियर है ये? यस और नो? हाँ, अभी नोट्स में आओ, वापस एक नोट्स में लास्ट पॉइंट लिखो। याद नहीं आया? आलमंड खाने से याद अगर रहता था तो सब लोग है ना पढ़े लिखे होते थे। ये गलत फहमी है, सब आलमंड खा के सीए बन जाते थे। बस, तो फिर आलमंड का नाम मत ले। चलो, सिक्स्थ में फर्स्ट पॉइंट राइट इट लाइक दिस। इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए है, इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, मतलब अगर लेस देन इक्वल टू साइन है मॉड्यूलस में, देन इसका फाइनल रिजल्ट ऐसा आएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव है, लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव है। मतलब x इज बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए। ओके, अगर लिखो, इसलिए आलमंड खाने से कुछ नहीं होता है। इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब ये साइन के ऊपर डिपेंड करता है मॉड का। अगर लेस देन इक्वल टू साइन है तो ये कॉमन आएगा, मतलब एक्स इज बिटवीन माइनस एंड प्लस। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो तुम्हारा कैलकुलेशन ऐसा आएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव और एक्स इज मोर देन इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब कॉमन नहीं आएगा। तो नेगेटिव से कम और पॉजिटिव से ज्यादा, ऐसा याद रखने का इसको। क्लियर है? क्लियर? हाँ, तो अभी आओ देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे। सबसे पहले फिफ्थ उसमें ग्राफ में करेक्शन करो। वो ओरिजिन का राइट हैंड साइड पे पॉइंट क्या दिया है वो गलत है, वो 3,0 होना चाहिए। ओरिजिन का राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वो 3,0 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अभी चेक करो फिफ्थ क्वेश्चन। कैन आई से ये 3 और -3 के बीच का लाइन में शेडिंग है। इसका मतलब इसका इनइक्वालिटी क्या आएगा? तो यू विल राइट दिस एज ऑप्शन बी। भी है ना, ये लाइन एग्जैक्टली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब एक्स से पास हो रहा है। तो अपना ऑप्शन आएगा डी, विच इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो ये होना चाहिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? और इसका ग्राफ परफेक्ट बैठ रहा है, तो दैट इज डी। तो ये सब ओरली है, लेकिन तुमको ध्यान से पता रहना चाहिए कि क्या कर रहे हो। चल नेक्स्ट, 1 मार्क 2 मार्क का ही है।
हाँ तो करना पड़ेगा ना, अच्छा है ना, आया तो बोनस है ये, इट इज बोनस, ऑलवेज बोनस। हाँ ये आता ही है ऐसा। पढ़ पढ़, मार्क्स के हिसाब से मत पढ़, पढ़, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट वेटेज है। लिख दे जो लिखना है वो। तो मैं भी नहीं कर रहा हूं ना, से प्लीज तो नहीं बोलेगा जा। 4 to 6 है। तूने गलती क्या किया मालूम है? तेरे को पूरा वीक ऑप्शन रहना था ना, तेरे को मैथ्स लेक्चर मिस नहीं करना था। 2 ही दिन था मैथ्स तेरे ऑल। नहीं वैसा नहीं, अकाउंट्स वो कोप अप हो सकता है बिकॉज शी इज डूइंग इट फ्रॉम 11। मैथ्स में लफड़ा है उसका, बेवकूफी किया उसने, बेवकूफी। ए पढ़े, नेक्स्ट पढ़। हाँ अभी ये लोग ने ग्राफ दिया है, उसका लीनियर इनइक्वेशन ढूंढना है। तो सबसे पहले चेक करो दोनों लाइन का कौन सा साइड पे शेडिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ओरिजिन साइड पे है, बरोबर है। हाँ तो दोनों लाइन का इनइक्वालिटी होना चाहिए लेस देन इक्वल टू। चेक करो लेस देन इक्वल टू, दोनों इनइक्वालिटी साइन होना चाहिए और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में ऐसा है? सीडी भी बोल दे। अरे क्या बोल रहे हो, ध्यान से देखो बरोबर। हर एक लाइन का इनइक्वालिटी साइन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होना चाहिए। तो बी आएगा, चेक करो। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू साइन है हर एक इनइक्वालिटी का। क्लियर है? अच्छा चेक कर लो पॉइंट्स भी। पहला इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, x इज 0 तो y कितना? जैसे डालो फर्स्ट इनइक्वालिटी में, y3 आएगा, मतलब 0,3 पॉइंट मैच हो रहा है। फिर वही इनइक्वालिटी में y को 0 डालो तो x कितना? अरे 4, तो 4,0 भी टैली हो रहा है। फिर सेकेंड इनइक्वालिटी देखो क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आएगा। अभी उसमें x 0 डाला तो y आएगा 4, तो 0,4 है देखो, एंड y को 0 डाला तो x आएगा, तो 3,0 भी है। तो टैली हो रहा है सब। चलो 7, ग्राफ दिया है और इन शॉर्ट अपने को इनइक्वालिटी बताने का है। तो सबसे पहले शेडिंग है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखा है वो लोग ने। अच्छा सब लाइन का नॉन ओरिजिन साइड है क्या ओरिजिन साइड है? अवे फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब सब लाइन का इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आना चाहिए। तो L1 ग्रेटर देन इक्वल टू, L2 ग्रेटर देन इक्वल टू, L3 ग्रेटर देन इक्वल टू, L4 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट सब में ग्रेटर देन इक्वल टू इज C। हो गया, दैट्स योर आंसर। इसलिए एक दो मार्क का ही देता है वो लोग, ये सबके लिए इजी है, इवन एसपी वालों के लिए इजी है ये। जो गुजरात से आते हैं ना वो लोग के लिए, टड़ी पर लोग के लिए भी इजी है। चल नेक्स्ट। हाँ रुक जा, अभी इसमें करने का कैसे, केनाई से वो लोग ने हमको इनइक्वालिटीज दिया है। टोटल कितना इनइक्वालिटीज है? 4, और हमको उसका ग्राफ बताने का है। ग्राफ भी दिया ऑप्शंस में। तो हाउ टू डू इट? सबसे पहले L1 का साइन बोलो क्या है, फिर L2 का,
L3 का, L4 मतलब L1 L2 L3 का नॉन ओरिजिन साइड, L4 का ओरिजिन साइड। चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है। ए में ही है, देखो L1 L2 L3 का ऊपर, L4 का नीचे। हो गया, दैट्स योर आंसर। समझ में आया? आया ना? चलो 9 10 ऑप्शन में डाल के टैली करो सब ऑप्शंस, इक्वालिटी में डाल के टैली करो। 9th और 10th ऑप्शन वाइज चेक करो, उसमें 0,0 चेक ही नहीं करने का क्योंकि सब ऑप्शन में है। पहले 0,4 चेक करो, 4,0 चेक करो। टोटल 2 इनइक्वालिटी है, दोनों में टैली होना चाहिए, एक में नहीं, दोनों इनइक्वालिटी में टैली होना चाहिए। चेक करो 0,4 दोनों में टैली हो रहा है क्या? x को 0 y को 4 डालो और चेक करो। अरे y को 4 डालने का है तो हाँ, तो सेकंड वाला भी होएगा ना, 8 इज लेस देन 12। अंडरलाइन करो, कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, मतलब he has to employ less than or equal to 9। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्सपीरियंस प्लस फ्रेश, सब मिला के लेस देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। he cannot employ more than 9। क्लियर? नेक्स्ट चलो, एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब एक्सपीरियंस को लोग ने x दिया इसलिए 5x, फिर 3 यूनिट्स फ्रेश वन, दैट इज 3y, एंड वो लोग ने बोला है एटलीस्ट 30, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, दैट इज योर ऑप्शन सी। क्लियर? चलो थर्ड, इनइक्वालिटी साइन को सर्कल करो, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब शेडिंग किधर होना चाहिए? नॉन ओरिजिन साइड। तो ऑप्शन ए में शेडिंग ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी देखो लाइन के नीचे, मतलब ओरिजिन साइड है। ऑप्शन सी देखो लाइन के ऊपर है, मतलब नॉन ओरिजिन साइड है, तो दैट इज सी। समझ में आया? सेम ऐसा फोर्थ, हाँ, अभी ये लाइन के राइट साइड पे शेडिंग है, मत नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब अवे हो गया, ओरिजिन का नॉन ओरिजिन साइड हो गया है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, तो इट विल बी नो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब एक्स का इक्वेशन आना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ रहा है? फिर फिफ्थ वन, अभी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगेन दिस इज नॉन ओरिजिन साइड, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो थोड़ा ध्यान से करो। कैन आई से लाइन के ऊपर जो भी है वो -3 है, और -3 से कम है या ज्यादा है? कम है, नेगेटिव में कम आता है, -4 इज लेस देन -3, मतलब ये लेस देन वाला आएगा, एंड दैट इज y लेस देन इक्वल टू -3, तो ये ध्यान रखने का। इज दैट क्लियर? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझा? चल 6, अभी पहला 2 नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड होना चाहिए। L1 का साइन क्या है? L2 का, और L3 का, मतलब L1 L2 का ओरिजिन साइड,
L3 का नॉन ओरिजिन साइड, L1 L2 के नीचे, L3 के ऊपर, चेक करो कौन सा है ऐसा, A है, और वो भी खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया? आया ना? नेक्स्ट 7th, हाँ चेक करो इनइक्वालिटी सीधा, L1 का लेस देन इक्वल टू L2 का और L3 का, और नॉन नेगेटिव भी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो L1 L2 L3 का ओरिजिन साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट खाली, तो B आएगा। समझ में आया? कर दो लास्ट, पढ़, मार्क करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सबसे पहले अंडरलाइन करो एटलीस्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट, मतलब अभी इसमें दो ऑप्शन है, बी एंड डी, है ना? हाँ, तो अभी उसमें से कौन सा, तो तुमको ये सब बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे दो प्रोडक्ट कौन सा है, ग्रेड ए और ग्रेड बी, और मशीन 1 मशीन 2, बराबर। अभी चेक करो, फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इन 1 आवर ऑफ ऑपरेशन मशीन 1 प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ ग्रेड ए एंड 1 यूनिट ऑफ ग्रेड बी। फिर while machine 2 in 1 hour of operation produces 3 units of grade A and 4 units of grade B. Machines are required to meet a production schedule of at least 14 units of grade A नहीं, ये ग्रेड ए का मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है ना। क्या बोल रहा है, मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू मीट अ प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ एटलीस्ट 14 यूनिट्स ऑफ ग्रेड ए, तो ग्रेड ए का 14 यूनिट्स है, एंड ग्रेड बी का 12 यूनिट्स है, मतलब ये तुम्हारा अवेलेबल कैपेसिटी है, ऐसे जाएगा, मतलब मशीन्स आर योर प्रोडक्ट्स बेसिकली। समझ में आया? क्योंकि अवेलेबल कैपेसिटी किसका दिया है, ग्रेड ए और ग्रेड बी का कैपेसिटी दिया है, तो ऑप्शन बी आएगा। लिखो ध्यान से, हाँ कर दो 9th। तो फूड 1 को x दो ब्रैकेट में, फूड 2 को y दो, और सबका एटलीस्ट बोला है, मतलब सब ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में सब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सी हो गया। क्लियर है? ए उसको फोन करना, हृदय को, आ रहा है क्या, उसको पूछ आ रहा है, नहीं तो फिर और एक छोटा टॉपिक करते, पहले पूछ तो सही। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल वाला करते हैं। और एक नहीं, इसमें कोई थियरी नहीं है, ये एक ही कंसेप्ट ऐसा है जिसमें कोई थियरी नहीं है। गिव द हेडिंग, हाँ यू कैन। चलो यार लेट्स स्टार्ट, चलो। ये तो पूरा 20 मार्क का 4 टॉपिक है, लॉजिकल पूरा 20 मार्क 4 टॉपिक, 9 से लेके 12 तक। वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो 4 या 5 कुछ भी पूछ सकता हो। अरे 20 मार्क का 4 टॉपिक है, डिवाइड बाय 4 करेगा तो एवरेज 5 मार्क आता है। क्या पूरा है क्वेश्चन?
कुछ भी आ सकता है। तुम लोग खाली वो 4 को मिला के 20 मार्क लिख के रखो, ऐसा इंडिविजुअल टॉपिक का कोई वेटेज ही नहीं है, कंफर्म ही करने का। लेकिन एट द सेम टाइम सी प्रॉब्लम ये है कि ये लॉजिकल दिखता स्कोरिंग है, लेकिन जब भी तुम करोगे ना तो तुम्हारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होएगा। तो अगर तुम्हारा 20 मार्क के लिए आधा घंटा चला जाता है तो इट इज़ नॉट वर्थ, बिकॉज उसके सामने तुम्हारा कुछ ना कुछ रह जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है खाली और 100 MCQ करने का है। तो तुम लोग ये जो अभी कर रहे हैं ना वैसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारा पेपर होएगा ही नहीं कंप्लीट। हाँ, तो एक MCQ के लिए 1 मिनट 20 सेकेंड है, पढ़ के सॉल्व करके मार्क करके नेक्स्ट पे चले जाने का है। मतलब अपना प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि 1 मिनट में 1 MCQ होना चाहिए, तो लास्ट में 20 मिनट बचेगा जो तुम चेकिंग और वो सब कर सकते हो। तो माय सजेशन इज, अभी पढ़ते वक्त लगेगा हाँ मस्त है क्योंकि डिस्कशन में करता है, लेकिन तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा उससे। सेकेंड सजेशन इज, जितना तुमको आता है उतना ही अटेम्प्ट करो, तुक्का मत मारना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो जिधर तुम 80 MCQ अटेम्प्ट कर रहा है और उसमें से 25 MCQ रॉन्ग है या 30 MCQ रॉन्ग है तो सीधा 40 के नीचे आ जाएगा, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, समझ रहा है? तो डोंट डू इट दैट वे, और डोंट गो फॉर फुल 100 मार्क्स का अटेम्प्ट, गो फॉर ओनली दैट मच अटेम्प्ट विच यू नो। उसमें 80 भी अटेम्प्ट किया और तुमको 80 का 80 बरोबर आता है ना, तो 80 पूरा मिलने वाला है। तो 100 अटेम्प्ट करके 20 रॉन्ग करके 80 पे जाना, उससे अच्छा पूरा 80 अटेम्प्ट करो और उतना मार्क्स ले लो, बस हो गया। इज दैट क्लियर? तो दैट इज माय सजेशन। एंड जो लोग नहीं मानता है ना वो लोग डैमेज कर रहा है अपना एग्रीगेट को, एग्रीगेट डैमेज हो जाएगा, सोच लो। तो तुम क्या, हाँ पॉसिबल ही नहीं है वो, पूरा 100 पॉसिबल ही नहीं है, वो भी तुम्हारे जैसे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो ये छोड़ो ना यार, वो मतलब ही नहीं है। मुंह पे बोल रहा हूँ मैं, जो हिसाब से तुम्हारा आदतें है, जो हिसाब से तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है, तुम लोग 80 अटेम्प्ट करेगा ना तो भी मैं खुश होएगा। हमें कोई गुड़ी गुड़ी पिक्चर दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज प्रोफेशनल एग्जाम, दिस इज नॉट अ बोर्ड एग्जाम, तो बेटर बी सीरियस, समझ रहा है? तो ये सब बकवास क्वेश्चन पूछा ना तो गाली खाएगा, सोच लो। चल, अभी इसमें ये पूरे टॉपिक में ना 3 पार्ट है, एक नंबर सीरीज, एक कोडिंग डिकोडिंग, एंड तीसरा है ऑड मैन आउट। अगर तुम मेरे को पूछो ना तो इसमें से सबसे ज्यादा ऑड मैन आउट पूछा जाता है, लेकिन तकलीफ ये है ऑड मैन आउट में सिर्फ नंबर्स वाला ऑड मैन आउट करता है वो लोग। मतलब नंबर सीरीज और ऑड मैन आउट दोनों सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स भी यूज होता है, नंबर्स भी यूज होता है, तो इट इज वेरी इजी। लेकिन इसमें टाइम जाता है, फिलहाल टाइम जाएगा चलेगा, लेकिन उधर तुम्हारा 1 मिनट में होना चाहिए, नहीं तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा आइला इतना टाइम चला गया, फिर क्या ही करेगा। द वर्स्ट ड्रॉबैक इज फॉर फाउंडेशन पेपर ऑफ मैथ्स कि तुम्हारा फर्स्ट MCQ में भी LR रहेगा, सेकेंड स्टैटिस्टिक्स रहेगा, तीसरा वापस LR रहेगा, चौथा मैथ्स रहेगा। मतलब तुम्हारा माइंड शिफ्ट होना चाहिए फट 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 फट। अगर 20 MCQ LR का ही करना है तो अपना माइंड वो पूरा वो उसमें आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यू हैव टू कीप शिफ्टिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहा है? इसलिए टाइम कंज्यूम हो जाता है, सो डू इट केयरफुली। क्लियर? अच्छा, नंबर सीरीज में क्या है, वो लोग एक नंबर सीरीज का पैटर्न देगा और मिसिंग वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, हमको वो पैटर्न ढूंढना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, पैटर्न में क्या हो सकता है? तो सिंपल है, कुछ भी हो सकता है कि सब नंबर्स में डिफरेंस सेम है, सब नंबर में मल्टीपल सेम है, सब नंबर में डिवीजन सेम है, कुछ भी हो सकता है, वो ढूंढना है। स्क्वायर सेम है, कुछ भी हो सकता है, वो पैटर्न ढूंढने का दिमाग लगाने का, दैट्स इट। तो ये तुमको कभी कभी आता रहेगा मैसेज में कि ये किसी से सॉल्व नहीं हुआ है, तुम सॉल्व करके दिखाया, ये टाइम पास होता है, यही है वो यही है। क्लियर है? चल शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 148, पढ़ चल।
हाँ वो ठीक है, क्वेश्चन पर 6, 11, 21 मतलब अपने को फाइंड करना है, फिर 56 और अभी सबसे पहले क्या सोचने का, तो डिफरेंस सोचने का। इसका डिफरेंस कितना है, 5 का है, मतलब ये +5 है। इसका डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस 25 है। कुछ भी बकवास करता है। ये डिफरेंस 10 का है, तो ये 15 का होना चाहिए, ये 20 का होना चाहिए। तो 21 + 15 गिव्स यू 36 एंड +20 गिव्स यू 56, तो ये बैठ गया। समझ में आया? तो ये पैटर्न लिख के रखो, पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट इज 10, 100, 200, 310 एंड डैश। चलो 10 और 100 का डिफरेंस 90 है, तो ये +90, फिर +100 मतलब 10-10 बढ़ रहा है। फिर ये 110 होना चाहिए, तो 310 आएगा, और ये 120 होना चाहिए, तो ये 430 आएगा। चलो अभी है 2, 5, 9, 14-27, तो +3, +4, +5, एक एक डिफरेंस ऐड हो रहा है, तो +6 और ये +7 होना चाहिए, तो दिस इज 20। थर्ड में देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है, $120, $99, -63, 48, 35। मतलब ये डिफरेंस कितना है, 21 का है, -21। फिर वो यहाँ से समझ में आता है, ये डिफरेंस है 15 का, ये 13 का, तो ये 17 होना चाहिए और ये 19 होना चाहिए, तो ये 80 आ जाएगा। चलो ये सब 4 डिजिट नंबर है, सबका डिफरेंस, पहले दो का डिफरेंस और नेक्स्ट दो का डिफरेंस चेक करो, मिल जाएगा। हाँ यू कैन यूज कैलसी। तो 7856 में 1008 ऐड करेगा तो मतलब ये डिफरेंस 1008 है सबका। क्लियर है? 6, 120, 80, 40, 45-15। कैसे पैटर्न, मतलब ये एक पेयर है, यहाँ पे डिफरेंस है 40 का, और ये पेयर में डिफरेंस है 15 का।
इट्स अ पेयर और कोई पैटर्न ही नहीं बैठ रहा है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकता है 120 का 2/3, 120 का 2/3 इज 80 एंड 80 का हाफ इज 40, 45 का 2/3 इज 30 एंड 30 का हाफ इज 15। ऑप्शन डाल के चेक करने का ना, ऐसा रहेगा तो पैटर्न बैठना चाहिए बस। अरे कैल्सी पे करने का है भाई। चलो 4, 12, 36 डैश 324, मतलब ये 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, नाइस वन, क्योंकि अपना दिमाग एक ही पैटर्न में चलता है इसलिए इधर अटकेगा। डिफरेंस नहीं बैठ रहा है ना, करेगा कैसे? कैसे करेक्ट? ये 1 स्क्वायर है, ये 1 क्यूब है, ये 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर है तो ये होना चाहिए 3 क्यूब, ये 4 स्क्वायर है, ये 4 क्यूब, सो दिस इज 27। 5760 960 192 डैश 16 और 8, मतलब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेगा 8 का 16 हुआ मतलब इंटू 2 हुआ। अभी ये 192 960 डिवाइड बाय 192 करो, मतलब ये इंटू 5 है तो ये इंटू 4 होना चाहिए, ये इंटू 3 होना चाहिए, तो ये 48 आएगा। और ये चेक कर लो ये इंटू 6 है क्या, तो पैटर्न बैठ गया। ये देखना इंटू 2 है, पीछे से कर रहा हूं। या फिर तू ऐसा कर कि 5760 डिवाइड बाय 6 960, 960 डिवाइड बाय 5 192, 192 डिवाइड बाय 4 48, 48 डिवाइड बाय 3 16, 16 डिवाइड बाय 2। चलो दिस इज 1 2 6 7 21 22 66 डैश 201। बोलो, जा सोचने दे सबको। तो ये चेक करो, ये देखो कैसा आएगा। 1 + 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, फिर 6 + 1 इज 7 इंटू 3 इज 21, +1 इज 22 इंटू 3 इज +1 आना चाहिए 67 एंड इंटू 3 चेक कर लो 201 है। एट 28 116 584 एंड डैश। चलो अभी ऐसा क्वेश्चंस कैसे करने का, तो तुम पहले डिफरेंस चेक करेगा। तो ये डिफरेंस होता है 20 का, लेकिन ये डिफरेंस देखो कितना होता है 88,
और ये डिफरेंस मतलब कुछ पैटर्न बैठ नहीं रहा है, तो अब नहीं, तो अभी करने का कैसे? ऐसा कभी भी आया डिफरेंस नहीं बैठ रहा है, डिवीजन नहीं बैठ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं बैठ रहा है, तो सोचने का ऐसा 8 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो 28 के नजदीक आएगा, एग्जैक्ट तो है नहीं। 8 3 जा 24, और कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। दोनों लेंगे ना, पहले एक एक करके करना है। नजदीक में कौन सा है? 24, तो +4 किया। अभी ये 28 इंटू 4 कर, +4, मतलब +4 इज कॉमन, या तो प्लस कॉमन रहेगा या तो मल्टीप्लीकेशन कॉमन रहेगा। मतलब दिस विल बिकम 8 इंटू 3 +4 इज 28, फिर 28 इंटू 3 नहीं है, 28 इंटू 4 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन एक एक बढ़ रहा है और प्लस सेम है। फिर 116 इंटू क्या होना चाहिए? 5 +4, चेक करो 584 आ रहा है, और फिर आएगा 584 इंटू, हो गया। मतलब या तो प्लस कांस्टेंट है या तो मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा। तो ढूंढने का ऐसे, समझ में आया? दो टर्म ऐड होके तीसरा टर्म बन रहा है। ये देखो 5 + 2 इज, फिर 2 + 7 इज, 7 + 9 इज 16, 9 + 16 is 25, 16 + 25 is 41, तो 25 + 41 will give you 66 is the answer. 13 देखना, सब परफेक्ट स्क्वायर्स है। 4 9 25 49, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में 36 नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स है। 4 9 25 49 डैश 169 289 एंड 361, मतलब दिस इज 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये होना चाहिए, दिस इज 13 स्क्वायर 17 स्क्वायर और 19 स्क्वायर, सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो ये 11 स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज 11 इज प्राइम नंबर। मतलब देख, इसमें 3 4 का स्क्वायर नहीं है, 6 का स्क्वायर नहीं है, 8 का नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर्स। तो ऐसा लिख के रखो तो समझेगा। चलो 14 का क्या है पैटर्न? +30 + 60 +30 + 60, तो 345, और ये प्लस, ये किधर बैठ रहा है? मतलब ये तुम्हारा 375 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये +30 और +60 बैठेगा, ये बीच का नंबर ये होना चाहिए। ये ढूंढो यार, ऐसा डिस्कशन मत करो, क्या बैठ रहा है, क्या ढूंढो। Now how you will find 2 3 3, मतलब डिफरेंस तो बैठ नहीं रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा +1 इंटू 1, परफेक्ट,
+3 इंटू 3, तो +4 इज 43 इंटू 4 होता है 172, और ये +5 बैठ रहा है लाइन में। चलो 16, दिस इज 7, 26, 63, 124, 215 dash and 511। मिला? मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं बैठ रहा है। इंटू 3 +5 है ना, लेकिन बाद में नहीं बैठ रहा है ना, इंटू 3 भी नहीं बैठ रहा है, इंटू 2 भी नहीं बैठ रहा है, करेक्ट। तो ऐसे केस में क्या करने का, सिंपल है, स्क्वायर्स और क्यूब में जाने का। दिस इज 2 cube -1, this is 3 cube -1, 4 cube -1, 5 cube -1, 6 cube -1, ये 8 cube -1 है, तो दिस शुड बी 7 cube -1। आई थिंक उसमें 63 बीच में है, 63 निकाल देंगे तो बैठेगा। तो देखो 6 इंटू 2 +1, 13 इंटू 2 +2, समझो 63 नहीं है। फिर 28 इंटू 2 +3, and 59 इंटू 2 इज 118 +4, मतलब 63 है ही नहीं उसमें, कट कर दो। चेक करो पीछे आंसर ये दिया है क्या। हाँ, मतलब 63 है ही नहीं, मिस्टेक हो गया, कुछ नहीं है, 63 सीक्वेंस में ही नहीं है। चलो 18 तो सेम है 12 जैसा, 18 और 12 रिपीट है, 18 इज सेम एज 12। तो 19th if you observe it is 1, 2, 5, 26 and dash, so this is 1, चलो ठीक है, so this is 1 square plus 1, this is 2 square plus 1, this is 5 स्क्वायर प्लस 1, तो ये होना चाहिए 26 स्क्वायर प्लस 1, मतलब प्रीवियस नंबर का स्क्वायर एंड +1।
ये नहीं बैठ रहा है ना। बोलो कैसे करेगा। वो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, दिस इज 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4, 5 क्यूब माइनस 5, 6 क्यूब माइनस 6, तो बचा ये, तो 336 आएगा। खाली बोलने से नहीं, कैसे आया वो भी बोलना पड़ता है। चलो अभी ये लेटर कोडिंग वाला पैटर्न है। इसको ऐसा लिखो, ऐसा डायरेक्ट ओरल मत करो, राइट इट दिस वे। सी सुन ले मैड्रास, मैड्रास मतलब चेन्नई, चेन्नई का नाम पहले मैड्रास था। दिस इज कोडेड एज NB, मतलब इफ यू ऑब्जर्व M का N, A का B, D का ही नेक्स्ट लेटर यूज किया वो लोग, बरोबर है। दैट इज ऑल नेक्स्ट लेटर। अभी तेरे को कोड दिया है दिल्ली का, तो देर आर 2 वेज ऑफ डूइंग दिस। सी दिल्ली वर्ड में लेटर्स वो वाले हैं जो मद्रास में है, तो उसमें सिर्फ D बैठ रहा है और कोई नहीं बैठ रहा है, तो ठीक है, तो अपने को बनाना पड़ेगा नेक्स्ट लेटर के हिसाब से। तो D का E, E का F, L का M, H I का J, मतलब इट इज कोड नेक्स्ट लेटर के हिसाब से बनाया ना वो लोग ने। तो गिवन को क्रैक करने का, उसके हिसाब से जो पूछा है उसका कोड बनाने का। दैट इज ऑप्शन बी। आराम से। रमन इज 1 2 3 2 5। फिर दिनेश का कोड है 6 7 5 4 8 9। अभी उसने पूछा है हमाम। अभी ये है ना कैसा पैटर्न है मालूम है, 2 लेटर है, 2 वर्ड है, उसका लेटर का नंबर्स दिया है और तीसरे वर्ड का पूछा है, तो तीसरे वर्ड के लेटर्स ये 2 में जाएंगे। चेक करो, H मतलब यहाँ पे H है 9, ऐसा उसी हिसाब से बना देने का, हो गया, वेरी सिंपल। A is 2, तो 9 2, M is 3, A is 2, again this is 3, so 9 2 3 2 3, that's our answer. Third mark करो, it's a good question. अभी देखो रेड में लेटर्स कितने हैं और कोड कितना नंबर्स है, इसका मतलब वो लोग ने रेड को कोड दिया है 6 7 and 20। इट इज नॉट 6 7 2 0,
अच्छा, तुम ऐसा बोल नहीं सकता कि सर 67 2 और 0 भी हो सकता है? नहीं, लेटर्स कितने होते हैं? 26, तो 67 लेटर्स हो ही नहीं सकते। मतलब ये लोग ने पोजीशन वाइज कोड दिया है, तो तुमको लेटर का पोजीशन भी पता होना चाहिए। हाँ नहीं है, तो अभी मेरे को बता, आर कौन सा पोजीशन पे है, ई कौन सा है और डी कौन सा है? नहीं है। हाँ रुक रुक रुक, कम टू योर पेज नंबर 145। उधर देखो, लेटर का सीधा पोजीशन भी है और उल्टा पोजीशन भी है। पेज 145। अभी बता, आर का पोजीशन क्या है? 18, ई का एंड डी का 4। लेकिन अपने पास ये नंबर्स तो है ही नहीं, लेकिन 18 के बदले क्या है? 20, मतलब इधर +2 किया है। 5 के बदले है 7 और 4 के बदले 2, मतलब फिर उल्टा लिखा है वो लोग ने कोड। पोजीशन, लेटर का पोजीशन +2 करके फिर रिवर्स में लिखा है। अभी वो लोग को किसका चाहिए? ग्रीन। ग्रीन है ना? हाँ, तो अभी बता, जी का पोजीशन क्या है? जी 7, फिर आर इज 18, ई इज 5 एन, तो सब में +2 करो, तो 16 7 7 29, मतलब कोड आएगा 1677209। करो। अरे एक ही समय सा है, बाकी सब तो डायरेक्ट है। वो तो मेरे को भी याद नहीं है, उधर लिखने का बाद में, तो काउंट करने का ऐसा। अरे क्या कुछ भी, एक सम ऐसा 2 सेकंड लगता है खाली लिखने में, ऐसे क्या रोते रहते हो? सब रोने का ही काम करते हो बस। तुम लोगों को 24 मिला क्या? मतलब लेटर का पोजीशन के हिसाब से ऐड किया है। वो हिंट कैसे मिलता है? पहला ही लेटर ए इज 1, मतलब वो लोग ने बोला है कि पोजीशन वाइज लेटर का लेने का है और ऐड करने का है। क्लियर? एक मिनट, पहले 24 का आंसर तो बोलो। और 25 का? अभी 26 कैसे करेगा? इट इज वेरी सिंपल। चल बोल, 26 पढ़ जरा। हाँ रुक जा, 2 5 6, यू आर गुड। चल फिर, वी आर बैड। फिर गुड एंड बैड। भी एंड का कोड चाहिए, तो सबसे पहले ये करने का कैसे ऐसा क्वेश्चन? पहले तो ऐसा लिखना पड़ेगा तुमको। अभी पहला 2 नंबर में कौन सा डिजिट कॉमन है, और पहला 2 स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड कॉमन है? मतलब 6 इज आर। अभी सेकंड 2 नंबर में कौन सा डिजिट कॉमन है? वर्ड में, मतलब 3 इज बैड। अभी फर्स्ट और लास्ट में 5 डिजिट कॉमन है एंड वर्ड इज गुड, तो 5 इज गुड, तो बच गया ना? अभी सिंपल मिल गया, 8 इज।
हो गया ना. एंड का कोड 8 है. नहीं है ऐसा. पेपर फाड़, थूक लगा के स्टिक कर. चलना, वैसे भी नहीं पढ़ती है तू, छोड़ना. वो सर नहीं, बस खाली अकाउंट में पास होके फायदा नहीं है ना. हुआ. हाँ हाँ, फिनिश करो अभी. आधा थोड़ी छोड़ेगा बीच में. वो लेट आया, अपन तो टाइम पे था. हाँ सर क्या. हाँ, तू 8:30 बोला था, हमारा 8:30 तक हो गया था, फिर हमने दूसरा टॉपिक चले गए. चल रे कुछ भी. 8:45 को आया, बोलता है 8:30 को. 20. अरे उसमें ऑड मैन आउट निकालने का है, तो पैटर्न ढूंढो और ऑड नंबर कौन सा है वो बोलो. कैसे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग कोर्ट पे जी रही है वो, ऐसा है. अरे करो, ढूंढो. हाँ तो पैटर्न ढूंढो, कौन सा पैटर्न में नंबर बैठ नहीं रहा है वो देखने का है खाली. अरे वही तो सोचने का है ना भाई. सोचो ना, दिमाग लगाओ जरा. सब मैं ओरली बता देगा तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलने वाला है. ढूंढो. क्वेश्चन मार्क है तो सिंपल है. मिसिंग वैल्यू फाइंड ही नहीं करना है, ऑड मैन आउट फाइंड करना है. अच्छा, ऑप्शन में देखो जो सीक्वेंस के नंबर है वही दिए, मतलब ऑड मैन आउट है ना. इसमें से कोई तो एक नंबर है जो पैटर्न में नहीं बैठ रहा है. ये ऐसा भी बैठ रहा है. A1 है, फिर C कितना है, F, J10 और, तो A स्किप करके, मतलब A के बाद B और फिर C, फिर C के बाद D E F, F के बाद G H I, 3 लेटर स्किप करके J, K L M N, अभी P Q R S T, तो ये U आएगा. इस ऐसा भी हो सकता है. नहीं बैठा पोल्यूशन तो ऐसा सोचने का. दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 and 6. दिस इज द वे यू थिंक इफ पोजीशन वाइज नहीं बैठा तो. चलो 29 का क्या है? वो डैश है उधर, लेटर बिठाओ और पैटर्न बिठाओ. A C फिर डैश है, फिर G है ना. अरे सिंपल है. ए के बाद लेटर कौन सा है? सी, मतलब बी स्किप किया है. अच्छा, सी के बाद आता है डी, तो ई आना चाहिए. ई के बाद होता है और जी है, मतलब ये 4 का पैर है. अभी वापस शुरू हो रहा है ए से, तो ये सी होना चाहिए. ई और जी मैच हो गया, ये एक पैर हो गया. अभी वापस, तो इन शॉर्ट तुम्हारा ब्लैंक है ई सी ए जी. दैट इज बी.
सेम ऐसा 30 करो। इट डिपेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है 4 ही हो। आज 4 ही है, देखना 4 ही है। बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, डी बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ऐसा है। बी डबल ए बी, बी करो, आगे करो, सब अच्छा ही है। 31 करो, 31 मैं नहीं बताने वाला है, तुम लोग ही क्रैक करेगा इसको। 31 करो, तुम ही बोला ना उधर एग्जाम में आया तो हम छोड़ देंगे। 31 करो, चलो 31 में डिरेक है। हाँ तो डिरेक है ना, नंबर्स देख के ही समझता है। 15 छोड़ के सब प्राइम नंबर है, 15 छोड़ के सब प्राइम नंबर है, तो लिख दो वहां पे एक्सेप्ट 15 ऑल आर प्राइम नंबर्स, इसलिए 15 इज ऑड मैन आउट। ट्वेंटी 23 छोड़ के सब इवन है, एक्सेप्ट 23 ऑल आर इवन। तो 73 छोड़ के सब परफेक्ट स्क्वायर्स है। मतलब ऑड मैन आउट ही। चलो 34 में देख के ही समझता है। थर्टी फोर कुछ भी, अरे 75 आएगा क्योंकि बाकी सब प्राइम नंबर है। इधर पैटर्न ढूंढने जा रहा है, पैटर्न है ही नहीं। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। हाँ और फिर वापस 2 का डिफरेंस। अरे ये सब प्राइम नंबर्स है 75 छोड़ के। नेक्स्ट, अरे ऐसा जरूरी थोड़ी है सब में प्राइम नंबर ढूंढेगा, 1 प्राइम थोड़ी है। एक मिनट है, बड़बड़ मत करो, चलो। हाँ क्यों, 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। अरे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं 1, तो 49 ऑड कैसे निकलेगा अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है तो। इधर प्राइम नंबर भी नहीं है, ऑड भी सब है, इवन भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी 2 है। अभी बहुत सोचो, अगर ये सब हो गया तो अभी चेक करो पैटर्न। करेक्ट, ये डिफरेंस 4 का है, ये डिफरेंस 9 का है, ये डिफरेंस 16 का है। मतलब पहले 2 स्क्वायर का डिफरेंस था, फिर 3 स्क्वायर का था, फिर 4 स्क्वायर का था। अभी वो 5 स्क्वायर के हिसाब से तुम्हारा डिफरेंस 25 मतलब 55 आना चाहिए। और फिर ये डिफरेंस तुम्हारा 36 का है, विच इज
6 स्क्वायर मतलब 49, इसलिए ऑड मैन आउट है। क्यों ना के आएगा तो पढ़ाई होता है ऐसा? तो तू खुद भी कभी कभी तो ऐसे ही आ जाती है। गुड। फिर ना के सबको टची होती है वो चलता है। ठीक है। 36 करो। क्यों? देखा, दे दे, कुछ बोल मत। चलिए, हर्ष रफ बुक थोड़ी है जो सब लोग आके लिख के जा रहे हैं उस पर। वेदांत, हर्ष के बारे में कुछ बोल मत। अक्षिता को नहीं पसंद है बकवास। सुबह तड़ी पार सॉल्व कर। तुम लोग दोनों क्या कर रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चले, तू ना क्या है ना। हाँ तो विद्या चढ़ा, चल अभी 36 सॉल्व करो। आया कि नहीं मिल रहा ना। अभी सोचने का कैसे इसमें। अच्छा मेरे को बताओ, पूरे सीक्वेंस में जो भी नंबर्स है वो सब सेम डिजिट नंबर्स है, 3 डिजिट नंबर्स। लेकिन 3 डिजिट नंबर में किधर असेंडिंग है किधर डिसेंडिंग है, बरोबर है? मतलब पैटर्न तो बैठेगा ही नहीं। तो कभी भी ऐसा रहेगा ना जहाँ पे पूरे सीक्वेंस में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है और इट इज असेंडिंग डिसेंडिंग एवरीथिंग, पैटर्न कभी भी है ना नंबर्स के बीच में होता ही नहीं है। इट इज ऑलवेज बिटवीन डिजिट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? मतलब आई कैन से फर्स्ट डिजिट इज सेकेंड प्लस थर्ड। अभी सेकेंड नंबर बताओ क्या है? तो 7 इज 3 प्लस 4। फिर 7 इज नॉट इक्वल टू 5 प्लस 1। फिर 6 इज 4 प्लस 2। फिर 8 इज 5 प्लस 3। फिर मतलब इन शॉर्ट दिस इज योर ऑड मैन आउट। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये बनने के लिए करना पड़ता है।
जो तड़ीपार होके छोड़ के आई है वहाँ पे। जा, क्यों आई है जा। बॉम्बे का एक स्क्वायर मीटर कम होएगा। थर्टी सेवन का कैसे मिला बता। अरे तो वही तो ढूंढना है ना, ऑड मैन आउट ही तो ढूंढना है। बता कैसे हुआ। बरोबर। तो 39 के हिसाब से ये नेक्स्ट होएगा इंटू 4 प्लस 4, ये कितना आ रहा है। तो 160 इंटू 5 प्लस 5। 2 महीने से बोल रहा हूँ, ईगो अभी हर्ट हुआ है उसका। सो 38 इज ऑड मैन आउट, क्योंकि 39 होना चाहिए था उसकी जगह पे। चलो 38 तो तुम्हारे से नहीं होएगा, 39 करो पहले। नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। 39 करो। चलो तू इमेजिन मत कर। वो तो छड़, वो राउंड टेबल नहीं, वो कैफे में बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सामने, और इमेजिन कर खासेगा। मतलब क्या हो रहा है ये इन शॉर्ट। पीछे से करेंगे तो 24 प्लस 24 प्लस 4। इन शॉर्ट 24 इंटू 2 प्लस 4 ना। हाँ तो वो ऑड मैन आउट होएगा ना। 24 इंटू 2 प्लस 4 इज 52। 52 इंटू 2 प्लस 4 इज 108। 108 इंटू 2 प्लस 4 इज 220। 220 इंटू 2 प्लस 4 इज इंटू 2 प्लस 4 इज इंटू 2 प्लस 4 इज, तो 112 इज द ऑड मैन आउट। करेगा तो सब क्रैक होता है।
बे ज्यादा ही विद्या चढ़ गई है अभी। 40 का आंसर। आया आंसर? 40 का बोल क्या किया? तो इंटू 3+3 होएगा ना इन शॉर्ट, इंटू 3+1 तो कितना आता है? वन 41 70 इंटू 2+1 किया तुमने। हाँ तो 1061.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ रहा है? हाँ तो 353.5 45 into 1 plus 1 is 46, 70 into 2 plus 1 is 141, फिर 353.5 into 3 plus 1 चेक करो। मतलब ये ऑप्शन से डिसाइड किया हमने, ऑप्शन से करेगा तो भी समझेगा ना। दैट इज ओके, दैट इज ओके। 41 का क्या आएगा? ब्लड का कलर पूछा है तो ब्लड का कलर होता है, एंड रेड यहां पे दिया है। फोर्टी 42 का आंसर बर्ड इज पैरट, एंड पैरट को वो लोग रैट बोल रहा है। सिक्स तीनों में कॉमन है, इसलिए तीनों में कॉमन वर्ड इज आर। बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। करेक्ट, वुड इज 9। हाँ तो अभी नॉट का स्कोर, नॉट का कोड पूछा है ना। हाँ तो 8 और 5 और 2 मतलब डी आएगा। फिर गुड का कोड इज 9।
करेक्ट, डेटा इनएडिक्वेट है. क्लियर है ना? चले, अटेम्प्ट योरसेल्फ करो, शुरू करो. ये आधे घंटे के लिए मैं नया टॉपिक थोड़ी चालू करेगा. थियरी बताएगा तब तक तो खत्म हो जाएगा. जा, वो लेट आया, वो टाइम पे आया रहता था तो अपना हो जाता था. मैं इसलिए पहले 12th करता है. एमसीक्यू में पता नहीं चलता ना यार, टाइम कितना जाएगा. चलो शुरू करो. अटेम्प्ट योरसेल्फ वो करना है. पहले अटेम्प्ट योरसेल्फ करो, उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा पहले अटेम्प्ट योरसेल्फ करो. जो भी बचेगा वो तुम लोग करके आ रहा है, खत्म करेंगे टॉपिक. थ्री 6 12 डिफरेंस डबल होते जा रहा है. 3 6 12 3 3 9 नहीं है बीच में, मतलब डिफरेंस डबल होते जा रहा है. तो 12 के बाद डिफरेंस 24 का होएगा. तो 22 में 24 ऐड करेगा तो 46 आएगा.